آج آپ کو ایک بالکل نئی کہانی سنانی ہے اور یہ آپ کے کانوں کے لیے نئی ہوگی۔ آج آپ کو ایک ایسے آرمی چیف کے بارے میں بتانا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں اپنے نمبر پر آرمی چیف بنا۔ جب اسے آرمی چیف بنایا گیا تو وہ فوج میں سب سے سینئر تھا۔ یہ وہ چیف بنا جس کے چیف بننے سے کسی جرنیل کو گھر نہیں جانا پڑا، کیونکہ یہ سب سے سینئر تھے اور اس کا تقرر بھی حسب معمول نواز شریف کے منحوس ہاتھوں سے ہوا۔ آج آپ کو اس چیف کی سٹوری سنانی ہے۔ جنرل جہانگیر کرامت، وہ فوجی سربراہ جسے فرعون اور بدماش جرنیلوں نے جنرل باجی کہا۔ جنرل باجی، تاریخ گواہ ہے کہ طاقت کے نشے میں چور فوجی سربراہوں نے جمہوریت کا گلا گھونٹا، مگر ایک فوجی سربراہ ایسا بھی گزرا جس نے طاقت ہوتے ہوئے بھی خاموشی سے سر جھکا لیا۔ پاکستان کے 12ویں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کا تعلق پشتونوں کے معروف قبیلے کوکے زئی سے تھا۔ آپ کے والد کرامت احمد سرکاری ملازم تھے۔ 1998 کا سال پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سال جنرل جہانگیر کرامت کے دور سربراہی میں پاکستان ایٹمی طاقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو GHQ میں جنرل جہانگیر کرامت یہ کارروائی براہ راست دیکھ رہے تھے۔ تاہم جنرل جہانگیر کرامت کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی جمہوری سوچ تھی، اور بدقسمتی سے یہی سوچ ان کی کمزوری بن گئی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں سافٹ ٹارگٹ سمجھتے ہوئے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ جنرل صاحب نے نہ کوئی مزاحمت کی، نہ مارشل لا لگایا، نہ مارشل لا کی دھمکی دی، نہ کسی قسم کی طاقت کا مظاہرہ کیا، بلکہ انتہائی خاموشی اور وقار کے ساتھ سرنڈر کر دیا اور عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھی جرنیل افسران انہیں طنزاً جنرل باجی کے نام سے پکارا کرتے تھے، ایک ایسا لقب جو ان کے نرم مزاج اور عدم مزاحمت کی علامت بن گیا۔ جنرل جہانگیر کرامت ایک سیمینار میں شریک ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو قومی سلامتی ہے اس کی ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ جو فیصلے ہیں وہ مشورے سے ہوں۔ یہ بات نواز شریف کو بڑی ناگزیر گزرتی ہے، حالانکہ آج کل وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں چاروں مسلح افواج کے سربراہ اور وزیر اعظم اور وزیر خزانہ یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ آئیڈیا جنرل جہانگیر کرامت نے دیا تھا، لیکن اس وقت طاقت جو ہے وہ نواز شریف کے سر کو چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے جہانگیر کرامت سے استعفی لے لیا اور جہانگیر کرامت کو ریپلیس کیا جنرل مشرف نے۔ آپ جنرل مشرف سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جنرل جہانگیر کرامت کو باجی کا خطاب دینے والوں نے بعد میں نواز شریف کے ساتھ کیا کیا اور نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا اور جنرل مشرف نے کیا کیا، وہ ساری تاریخ ہے۔ لیکن اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ آپ نے ان کو کبھی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنے محترم ویورز کو جنرل باجی کے بارے میں جو ہے وہ انفارم کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، اب تو آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ میری طرف سے میرے تمام معزز ویورز، میری یوٹیوب فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر،
गुड मॉर्निंग। आप जहां पे रहें खुश रहें, जहां पे हों पुरसकून हो, और आपकी जिंदगियों में कोई मसला जो है वो पेश ना आए। आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन जो है वो खबरें रखनी है और एक वीलॉग रखना है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना है डॉक्टर हफीज पाशा। इन्होंने रात को जो है वो बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है। इन्होंने इंकशाफ ये किया है कि जो इस वक्त मईशत के अदाद शुमार हैं, ये पाकिस्तान की जो है वो 30 साल तारीख में इतने खौफनाक अदाद शुमार सामने नहीं आए। और उन्होंने जो सबसे बड़ा बम फोड़ा, वो बम ये फोड़ा कि इस वक्त पाकिस्तान में 18 मिलियन जो है ना नौजवान वो बेरोजगार हैं। 18 मिलियन से क्या मुराद है पता है आपको? 1 करोड़ और 8 लाख। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो सर्वे होते हैं ना, ये अमूमन मेन शहरों के होते हैं, बड़े शहरों के होते हैं। यानी पाकिस्तान, मेरा ख्याल है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तारीख से भी, यानी इन 5 दरियाओं की सरजमीन कभी 45% गुर्बत से नीचे नहीं गई, क्योंकि ये 5 दरिया ये रोजी का, ये जिंदगी का और ये रौनक का बायस थे। इनसे लोग अपना रोजगार वाबस्ता रखते थे। पहले हमने उन 5 दरियाओं में से 2 दरिया जो है वो बेच डाले इंडिया को फौजी आमरों ने, बाकी जो 3 हैं उनकी सूरत हाल आपके सामने है। तो ये 5 दरियाओं की सरजमीन बड़ी मशहूर थी, इसलिए पंजाब है तो ये 45% जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे चला गया है। और अब जो खबरें आ रही हैं, तशवीशनाक खबरें, वो खबरें ये हैं कि जो है ना वो जो गल्फ ममालिक हैं, खासकर यूएई और इसके अलावा सऊदीया, इसके अलावा कुवैत, इनमें जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक फितरती जो है ना वो गुस्सा पाया जाता है। यानी सऊदीया में तो फौज बेचकर कुछ काबू पाया गया है, अपनी फौज भेजी गई है, उसके बदले में सस्ता सौदा किया है। सस्ता, ये जिस तरह सिचुएशन चल रही है ना, यानी अमेरिका जिस तरह फंसा हुआ है, ईरान जीत रहा है, इजराइल को मार पड़ रही है, लबनान में जंग बंदी हो रही है। अगर यहाँ पे कोई स्टेट्समैन होता ना, जिसे अपने जाती इक्तदार से दिलचस्पी न होती, जिसे पाकिस्तान से दिलचस्पी होती, जिसे पाकिस्तान की अवाम से दिलचस्पी होती, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। यकीन करें, बहुत बड़ी डील हासिल की जा सकती थी, ब्लैकमेल किया जा सकता था अमेरिका को, इजराइल को, अक़वाम मुत्तहिदा को, कि ठीक है जी हम पीस मेकर बनते हैं, हम ईरान से बात करते हैं। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि हमारे एहसास से जो है ना वो करें, वो अनफ्रीज करें हमारे एहसास से। और इब्तदाई तौर पे खबरें आ रही हैं कि अमेरिका 20 अरब डॉलर्स के एहसास से अनफ्रीज करने पर रजामंद हो गया। 20 अरब डॉलर्स। अब बताएं हमारे साथ क्या हुआ? हमसे यूएई ने 3 अरब डॉलर्स मांगा, सऊदी ने दे दिया और हमने अपनी फौज दहरान भेज दी। यहां पे बहुत बड़ी डील हो सकती थी और हो सकती है, लेकिन क्या करें? जाती इक्तदार, जाती नौकरी, जाती जुल्म सितम, इमरान खान पे जुल्म सितम, इमरान खान को अंदर रखना, इमरान खान को अंधा करना कि कल को इमरान खान को छोड़ भी दें तो मेडिकली फिट ना हो। यानी ये इनके ज़हन में है, वरना बहुत बड़ी डील ली जा सकती थी दुनिया से, यूरोप से, कि हमें इतना कुछ दें तो हम जो है वो ये डील करवाते हैं, वरना भाड़ में जाए। हमें क्या नुकसान पहुंच रहा था? हमारे जहाज तो अपना हुर्मुज़ में नहीं रोके थे ईरान ने। ये तो इन्होंने जो है ना जंग को भी मौका समझा और जो है ना वो कीमतें बढ़ा दी। इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया भर से तेल की कीमतें ज्यादा है। रात को 32 रुपए लीटर जो है ना डीजल कम किया गया, पेट्रोल को छेड़ा भी नहीं गया। यानी इस जंग से पहले पेट्रोल 258 का था, अभी 322 का है, अभी भी 322 का है। जंग खत्म हो गई है। बहरहाल ये बड़ी डील ली जा सकती थी और ये बड़े खौफनाक फिगर्स हैं जो डॉक्टर हफीज
पाशा ने पेश किए हैं कि इतने लोग जो है, इतने नौजवान, अगर इसी को सच मान लिया जाए, इसी को, और ये भी हकीकत है, यानी ये भी तस्लीम करने में कोई आड़ नहीं है कि यहां का नौजवान भी वो डीठ है, यहां का नौजवान भी अपनी नौकरी या अपना कैरियर 16वें ग्रेड से शुरू करना चाहता है, या कम से कम 17वें ग्रेड से। वो रेडी लगाना नहीं चाहता, वो सब्जी बेचना नहीं चाहता, वो कोई काम करना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं डाकिया बन जाऊं, पोलियो के कतरे पिलाने वाला सरकारी एहलकार बन जाऊं, क्योंकि लूट मार करूं, क्योंकि काम ना करूं, तनख्वाह टाइम पे मिले। ये नौजवान में भी कमी और कोताही है। यानी मेरा सवाल है नौजवान नस्ल से कि अगर इलोन मस्क वो सरकारी नौकरी करते, इलोन मस्क 10 खरब, अगर मार्क ज़ुकरबर्ग जो है वो सरकारी नौकरी करते, अगर क्रिस्टीना रोनाल्डो डाकिया बन जाता, पीएन बन जाता, यहां पे लोग पीएन लगने के लिए वो लाखों रुपए देते हैं, मुझे पता है, पीएन लगने के लिए किसी अस्पताल में, किसी उसमें। ये नौजवानों में भी कमियां कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं। और फिर पाकिस्तान का सेटअप ऐसा है कि बाप ने कमाना है और उसके 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, फिर उन्होंने खाना है। डॉक्टर सरार अहमद कहते थे कि अगर आपके बेटे ने बीएससी करना है ना, बीएससी करवाएं, कपड़े दें, खाना दें, फीस दें, हो गया। अगर आपके बेटे ने एफएससी करना है तो एफएससी करवाएं, खाना दें, कपड़े दें, फीसें दें। जब वो मुतलका या मतलूबा तालीम ले ले, अब उसे कहें कि बेटा हमसे ये हो सकता था, ये अब आप जो है ना हिम्मत करो। बड़ी खूबसूरत बात, अब हिम्मत करो। यूरोप वाले करते हैं, यूरोप वाले करते हैं ना, बर्तानिया में करते हैं कि आप शाबा हिम्मत करो। अगर आगे पढ़ना है ना तो कहीं पे जॉब भी करो और पढ़ो भी सही। केएफसी पे लग जाओ, कहीं पे लग जाओ, बैरे लग जाओ, डिलीवरी बॉय लग जाओ और पढ़ो भी सही, रेडी लगा लो, ये डॉक्टर सरार कहते हैं, और तरीका भी यही है। बहरहाल ये 18 मिलियन जो है वो लोग बेरोजगार हैं। आज हमने ऑपरेशन करना है इस तजर्बाकार टीम का, कि ये जो तजर्बाकार टीम आई, ये 40 साल के लुटेरे तजर्बे, यानी जिनको लूटने का तजर्बा था, इस पे आपने गौर रखना है। मैं एक आपके सामने पिक्चर रखता हूं कि जब इनको लाया गया और ये आए, ये लानती, ये माफिया, ये कातलों, ठगों और रस्सागीरों का एक ग्रोह जिसे आप मुस्लिम लीग नून कहते हैं, उन्होंने क्या किया। शरीफ खानदान की सरबराही में बनने वाली हुकूमत कहती है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आकर मुल्क को तबाह किया था, हमने आकर मुल्क को ठीक कर दिया। तो आइए मैं आपको 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद उसी पीडीएम 2 की हुकूमत की कारकर्दगी और मुल्क को ठीक करने की कुछ तफसीलात बताता हूं। फैसला आप लोगों ने करना है कि मुल्क किसने ठीक किया था और किसने तबाह कर दिया। गुज़िश्ता 4 बरस में इन ठगों की हुकूमत में जीडीपी ग्रोथ 6.1% से कम होकर 2% पर आ गई। इमरान के दौर में कोरोना के बावजूद 6.1 थी। जी, एक्सपोर्ट्स $31 अरब से कम होकर $28 अरब रह गई। कर्जा 51 ट्रिलियन से बढ़कर 81 ट्रिलियन, 51 ट्रिलियन से बढ़ के 81 ट्रिलियन रुपए हो गया। डॉलर 176 रुपए से बढ़कर 280 रुपए तक जा पहुंचा, जिसमें वो बात शामिल नहीं जो डॉलर ने इन्हें तजर्बाकारों की हुकूमत में डॉलर ने 350 का टारगेट भी हिट किया था और फिर वहां से 280 पर वापस आ गया या लाया गया। पेट्रोल 150 रुपए से बढ़कर 366 रुपए हो गया। याद रहे कि इन्हीं तजर्बाकारों के दौर में पेट्रोल ने 458 रुपए फी लीटर भी हिट किया है। जी, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद तारीख में
पहली बार इतना इजाफा हुआ जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया था, हत्ता कि फौजी डिक्टेटर्स ने भी ये नहीं किया था। बिजली की कीमत 17 रुपए फी यूनिट से बढ़कर 58 रुपए फी यूनिट हो गई। एफडीआई यानी बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी, जिसे हम अंग्रेजी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकिली अपने अरूज पर पहुंच गई, जिसमें पिछले दिनों इस हुकूमत का तर्जुमान, सेनेटर, वजीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कराची में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार कर दिया कि पाकिस्तान से पिछले 3 सालों में 100 अरब डॉलर्स बैरूनी ममालिक में मुंतकिल किए गए हैं। ना हमारी मर्जी से यहां कोई आ सकता है, ना हमारी मर्जी से कोई जा सकता है। हाँ, हमारी मर्जी हो तो एयान अली जैसी चीज वो जा सकती है, फजीलाबादी जैसी चीज कौन काफिर रोकता है, वो जा सकते हैं। और सिंध से लांचों पर डॉलर्स जा सकते हैं, खुसूसी त्यारे ऑस्ट्रिया, वियना जा सकते हैं और उनकी कोई तलाशी नहीं होती जी। जिसमें उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर जून 2026 के बजट से पहले 10 अरब डॉलर्स वापस नहीं लाए गए तो हम सिर्फ 2 बंदों को उठाएंगे और फिर इस सारी करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग का कच्चा छट्टा खोल देंगे। सबसे पहले क्योंकि दुबई लीक्स में जो है वो मोहसिन नकवी और उनकी एहलिया का नाम आया था, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है अपनी एहलिया को उठा लें या अपनी तन्हाई में एहलिया से पूछ लें, या फिर कोई और मोहसिन नकवी को उठा ले क्योंकि मोहसिन नकवी का नाम भी आया था, या 13 जर्नैलों को उठा लें, उनको उल्टा लटकाएं, उनके कपड़े उतारें, उनको नीचे से धुआं दें, धूणी दें नीचे से, यानी उल्टे लटके हुए हों, नीचे धुआं जलाएं और उनसे पूछें कि जो है ना उन्होंने ये किस तरह 13 जर्नैलों ने अपनी दुबई में जायदाद जो है या वो पैसे मुंतकिल किए हैं, या ये जो सारे कवानीन हैं, ये जो सारी अदालतें हैं, ये जो सारा इंसाफ है वो गरीबों के लिए है, वो इमरान खान के लिए है, वो इमरान खान की बीवी के लिए है। यानी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, 4 तारे 3 तारे, टंडिटी टेंशन, टंडिटी टेंशन और गार्ड ऑफ ऑनर और दुश्मनी एक 73 साल निहत्ते शख्स से और एक उसकी बापर्दा और गैर सियासी बीवी से आज तक नून लीग कहती है कि जी कुलसूम नवाज का इलाज हो रहा था लंदन में। कुलसूम नवाज जेल में नहीं थी, कुलसूम नवाज ने इलेक्शन लड़ा था, कुलसूम नवाज ने सियासी शरारतें की थी, तो उसमें इमरान का या पीटीआई का क्या कसूर कि वो लंदन में मर गई। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो तो कब की मरी हुई थी, उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए वेंटिलेटर पे वो बऊजी और वो जॉन, और ये करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये करते हैं। ये दुनिया के सबसे लानती हैं, सबसे लानती ये 2 खानदान, सबसे बड़े लानती ये 2 खानदान। मैंने आपको बताया है कि मालिश करने वाली माई जो इनकी मां की मालिश करती थी, उसकी तनख्वाह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से चाहती थी 35,000 रुपया। असदुल्ला खान गवाह हैं, ये वो लानती लोग हैं, ये वो खंजीर लोग हैं कि उस औरत की तनख्वाह सरकार से जाती थी, सरकार से। आपको पता है कि इन 2 गंजों की मां वो पंजाब असेंबली की खुसूसी नशिस्त पे रुकन थी पंजाब असेंबली की, पता है आपको? पूरे 5 साल उसने मरात और तनख्वाह ली। वो दोस्त कौन, इन सबसे बड़ा दोस्त की इनका बाप जिसने ये सारी अंपायर खड़ी की, दूसरी दोस्त कौन इनकी मां, वो लेती रही तनख्वाह इस कौम की, मरात लेती रही। जाहिर है वो 2 दोस्तियों ने इन्हीं को पैदा करना था, इन 2 गंजों को, तो वो तनख्वाह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड देता रहा। बहरहाल आगे चलते हैं। और एली मौला हक हैदर
$3 खरब का ट्वीट किया है अब्बास इराक्ची ने। इसको कहते हैं हमारी ना और हमारी हां पर दुनिया के फैसले हो रहे हैं। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। अब्बास इराक्ची आबनाए हुर्मुज़ को कमर्शियल जहाजों के लिए खोलने का ट्वीट करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज जंप करती हैं और वो पहुंचती हैं 3 खरब डॉलर जो है वो क्रॉस कर जाती हैं। इसको कहते हैं हमारी हां और हमारी ना। डाकिया बन के नहीं, अर्दली बन के नहीं कि जी वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आप ईरान को कहो कि जी ईरान वॉशरूम चला जाए, उधर जाके बताया, फिर ईरानी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कहो कि हाँ जी हम वॉशरूम जा रहे हैं। ये अखे पाकिस्तान का जो है ना वो नाम आ रहा है, हमें भी खुशी है पाकिस्तान के टेलीविजन पे नाम आ रहा है, बस यही नाम आ रहा है। वो भाई जब वो लगाते खुद हैं, जब वो लगाते खुद उन्हीं के बंदे होते हैं, लगाते खुद हैं। हमीद गुल को सुन लें, जब वो बंदे ही अपने लगाते हैं, बंदे ही अपने इंस्टॉल करते हैं, तो उनको प्रमोट करना है, उन्होंने उनकी प्रमोशन करनी है, उनको वजन देना है। ये कौन लाया है हुकूमत 17 सीटों वाली, कौन लाया है? जनरल आसिम मुनीर को कौन लाया है? बकौल हमीद गुल अमेरिका पेंटागन। उन्होंने मेरी तारीफें करनी है, उन्होंने इमरान खान की तारीफें करनी है? एब्सोल्युटली नॉट। जिसके इस फैसले ने पाकिस्तान को ईरानी मिसाइलों से बचाया, कोई अड्डा नहीं था, उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, वरना कोई मुल्क भी नहीं बचा। ये मैं नहीं कह रहा कि ईरान कोई जिंदा खा जाता है या निकल लेता है, लेकिन फिर भी यहां पे कोई मिसाइल नहीं आके गिरा। और इमरान के एब्सोल्युटली नॉट ने वो इतना बाबरकत था, इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्राजील, ब्रिटानिया सब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को कि भाड़ में जाओ। अब वो कभी कौन से झूठ बोलता है, कभी कौन से झूठ बोलता है, और उनके साथी हैं ये फील्ड मार्शल और उनके साथी हैं ये अर्दली। एप्स्टीन ज़दा ऐसे बंदे से हाथ मिलाकर बंदा हाथ को सल्फ्यूरिक एसिड से धोए कि डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाए बंदा, उसकी बदबू सूंघे। मैंने कहा ना एप्स्टीन फाइल में देखें, आप उसको टीवी पे देखना पसंद नहीं करेंगे कि इसने क्या कुछ किया, लेकिन ये वो इस तरह बाद ऊंचा करता है, ये बगलों में घुस जाते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं कि क्या टी रोज है, क्या पॉइजन की खुशबू है बगलों से, और पूरी पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है। अब और जुल्म होगा, और जुल्म होगा, क्योंकि पीछे बड़ा यजीद खड़ा है, यानी उमर बिन आस और शिमर जिल जोशन, इनके पीछे यजीद खड़ा था ना, तो उन्होंने करबला में क्या किया, पीछे यजीद खड़ा था। अब इनके पीछे जो है ना वो यजीद या नमरूद, ट्रंप नामी एप्स्टीन ज़दा या पीट हेक्सेट शराबी बदकार, वो खड़े हैं इनके पीछे। अब ये पाकिस्तान पे बुशरा बीबी का देखें, उसकी आंख भी गई। ये क्या कर रहे हैं? मुसाद ने इनको कौन सा जहर दिया है, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ने, कि ये अंधे कर रहे हैं लोगों को। इजाज चौधरी के गुर्दे फेल कर दिए, सरफराज चीमा का बाजू सुन कर दिया। ये क्या खिला रहे हैं और क्या दे रहे हैं? ये गुड़िया के पास, पंजाब की रानी के पास आईफोन था, आईफोन जेल में फैज हमीद ने दिया हुआ था, फैज हमीद ने, उसके पास आईफोन था। तो अब वो आके जो जुल्म सितम करेंगे, यानी इधर पाकिस्तान में, वरना ईरान की हां और ना में फैसला हो रहा है। ईरान मुकम्मल झूठ बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल झूठ बोल रहा है। बीवी इतबार नहीं करती, बल्कि बीवी पहले जेफरी एप्स्टीन की बीवी थी। ट्रंप के करीब आने के लिए पहले उसने जेफरी एप्स्टीन को खुश किया, फिर ट्रंप के करीब आई। आपको पता है इनका जो है ना क्या वो दीन मजहब है इस मामले में, आपको अच्छी तरह पता है। वो पहले जेफरी एप्स्टीन के साथ जो है ना तल्लुकात में थी,
इन लोगों की जो है ना ये बगलें सूंघ रहे हैं और इन लोग खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये नहीं कि कोई तहज्जुदें पड़ी हैं या कोई जो है ना ख्वाब में किसी का दीदार हुआ है, किसी बड़े बाबे का, या कोई खुशखबर। नहीं 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 नहीं, ट्रंप खुश है तो क्यों ना खुश हो? लाया कौन है? लाया कौन है? वो अपने जो उनके पपेट हैं, वो सीसी है, मिस्र में सीसी है, वो इंडोनेशिया में एक कार्टून बैठा है। ये हो गया, हमारे वाला हो गया, खुद लाए हैं, खुद तारीफें कर रहे हैं, खुद बांस पे चढ़ा रहे हैं। जब काम निकल गया तो जिया का जबड़ा, अयूब का फालिज, याया का पागलपन, मुशर्रफ का कॉरिडोर में किसी का न जाना, सिर्फ कुत्ते का होना, काम निकल गया तो बहरहाल ये वो खुद लाए हैं तो उन्होंने तारीफें। आज हमने उस नहूसत का जिक्र करना है जो जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पर लेकर आए हैं। भारत से जंग होती है, झड़प होती है, और जो है एयरफोर्स वो बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 11 जहाज गिरा देती है इंडियन एयरलाइन, इंडियन एयरफोर्स के राफेल बड़े जदीद तैयारे गिरा देती है। हम 4-5 कहते हैं, ट्रंप वो बांस पे चढ़ाते चढ़ाते 11 पे पहुंच जाता है। ये हो गया ना, उसके नतीजे में क्या होता है? सिंतास मुआहदा मुअत्तल हो जाता है और दरिया बंद हो जाते हैं। नहूसत मुलाहदा करें। उसके बाद क्या होता है? ईरान और अमेरिका जंग होती है, इजराइल आपके सामने। हम सऊदीया में फौज भिजवा देते हैं सऊदीया में। यकीन करें ये अमेरिका के साथ मिलकर लड़ते। ये वो 20-25 लोग अली खामेनाई की शहादत पे जो इन्होंने गोलियां मार के शहीद कर दिए, और शिया उलमा को सलाम है, हक अली, उनको सलाम है कि उन्होंने इनको बांह चाड़ी, वरना ये ईरान के खिलाफ लड़ते। फिर भी इन्होंने फौज 5 अरब डॉलर में बहुत सस्ती बेची। इन्होंने फौज जो है ना वो सऊदीया भिजवा दी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अमारात, यानी हम पैदा हुए हैं तो हमारे जो अमारात के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान में इतने प्रोजेक्ट्स हैं यानी अमारात के, लेकिन उन्होंने बदला भी लिया रहीम यार खान में। क्योंकि मैंने मेजर का आपको एक किस्सा सुनाया था कि मेजर कहता है हम ड्यूटी पे थे तो चीखें रात को बहुत दूर दूर तक सुनाई देती थी। फिर एम्बुलेंस खड़ी होती थी, फिर एम्बुलेंस वो उनको अस्पतालों में लेके जाती और कई बच्चियों का इंतकाल भी हो जाता। ये एक मेजर की जुबानी है। ये खिदमात भी हम देते रहे यूएई को, इस तरह हाथ पे हाथ करके मिलते भी रहे। आपको पता है, यानी चचा भतीजी ले गया, भतीजी चचा ले गई, ये सारा बहरहाल वो ताल्लुकात खत्म हो गए। और सबसे जो खतरनाक बात ये है वो कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि यूएई बहुत ज्यादा गुस्से में है, और खासकर जो पाकिस्तानी मजदूर हैं, वहां पे जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, उनका मुस्तकबिल खतरे में आ गया है। और अल्लाह न करे कि उनको नौकरियों से निकाल दिया जाए। पहले पाकिस्तान की सूरत हाल आपको बताई है, 1.8 मिलियन जो है ना नौजवान बेरोजगार है, और अगर वो आ गए तो फिर उसके बाद क्या होता है? अमारात से ताल्लुकात खत्म। SIFC बनती है, मैं 100 अरब डॉलर लूंगा, 25 अरब डॉलर वापस नहीं करूंगा। बाप का राज है। ये तो वर्दी बदमाशी है पाकिस्तान में। दुनिया में क्या क्या पड़ी है? दुनिया में वर्दी क्या नहीं हो, सरकारी मुलाजिम क्या किसी, ये जो सारा कुछ हो रहा है। आपने अमेरिकी आर्मी चीफ देखा, ईरान का आर्मी चीफ देखा, इजराइल का देखा, तुर्की का देखा, ये जो कोशिशें कर रहे हैं। और यही जो है ना वो टारगेट था कि कल परसों जब मसूद पजेश्कियान के साथ मुलाकात की तस्वीर आती है तो जहां पे मसूद पजेश्कियान के साथ सदर को बैठा होना चाहिए था अपने बराबर, वहां पे आर्मी चीफ बैठा था आसिम मुनीर। मकसद यही था, पूरा हो गया। अब वो खलीफा बने, बादशाह बने, सदर बने, सरप्रस्त बने, कैद आला बने, सुप्रीम लीडर बने, कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो सैयद अली मुज्तबा खामेनाई है। तो यहां पे अब सुप्रीम लीडर एक रूहानी पेशवा, हाथ चूमना लाजमी है और उसका जो है ना हुक्म मानना लाजमी है, तो वो जनरल आसिम मुनीर होंगे। बाकी सारा मुल्क जो है वो उनके नीचे होगा। फौज,
25 करोड़, ले ले, अर्दली, चपड़ासी 25 करोड़, ये उसके नीचे होंगे। अब वो जो है ना वो बन सकते हैं। बहरहाल SIFC बनाई गई और मिशत जो है ठीक करने का दावा किया गया। ग्रोथ रेट जो ऑलरेडी 6.1 पे चल रहा था, अभी आपको बताया वो 2% पे आ गया। ये है नहूसत के साए। उसके बाद तनकीद रोकने के लिए फायरवॉल पर अरबों रुपए लगाए गए, लेकिन सबसे गैर मकबूल जो शख्सियत है पाकिस्तान में इस वक्त वो जनरल आसिम मुनीर हैं। अब किसी से पूछ लें, हाँ कोई बोले न बोले, जाहिर है लोगों ने यहां रहना भी है। उसके बाद एक्सपोर्ट्स खत्म, आप टेक्सटाइल वालों से पूछ लें। उसके बाद बिजली खत्म, उसके बाद गैस खत्म, बंद। उसके बाद स्कूल बंद। स्कूल इनका टारगेट होते हैं फौरन बंद करें, फौरन, क्योंकि ये मुताले पाकिस्तान को समझ चुके हैं कि झूठ है। कल परसों मैट्रिक के पेपर में सवाल आया है कि आप मरियम नवाज के बारे में क्या जानते हैं। ये मैट्रिक के पेपर में सवाल आया है, नया मुताला पाकिस्तान आ गया। अब जो हम मरियम के बारे में जानते हैं वो लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन सवाल आया है कुलसूम नवाज की खिदमात बयान करें, ये नया मुताला आ गया है। ये कैसे लोग हैं, कैसी अफ्यून देते हैं। और स्कूल इसलिए बंद किए हुए हैं, शऊर ना आ जाए। उसके बाद क्या होता है कि जी तहरीक इंसाफ जो है ना और इमरान खान रेड लाइन है, हर महाज पे इस रेड लाइन ने शिकस्त दी। इलेक्शन में शिकस्त दी, बयानिए पे शिकस्त दी, सोशल मीडिया पे शिकस्त दी। 2-2 टके के टाउट इनके सामने 1 मिनट नहीं रुक सकते और उनका एक काम है गालियां बकना, गालियां। ये रिजवान रजी वगैरह की, मैं कहता हूं बेटियां ये जो ट्वीट देखती होंगी बेटियां, तो वो इंजॉय करती होंगी रिजवान रजी के अल्फाज से, जो वो दूसरों की माँ बहनों के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसकी बेटियां इंजॉय करती होंगी। यानी अल्फाज से भी तो इंजॉय होता है ना। वो रिजवान रजी करता है, दाढ़ी रखी हुई है, वो नजम वली करता है, इख्तियार वली करता है, तलत हुसैन करता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक सफेद दाढ़ी वाला अंसार अब्बासी लानती करता है। बहरहाल ये करते हैं, तो उस रेड लाइन ने शिकस्त दी। उसके बाद जी जरी मुल्क है, ये जरी मुल्क है। वो जरी मुल्क ना फसल बिकती है ना उसका रेट मिलता है, किसान रुल गए हैं। ये सारी की सारी जो नहूसत का दायरा है, ये जो नहूसत है, ये आप चेक कर लें। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन आर्मी चीफ, अभी इब्तदाई में भी एक आर्मी चीफ के बारे में बताया, वो मौसूफ है, लेकिन मौसूफ अनकरीब पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर और रूहानी लीडर होंगे सैयद अली खामनाई की तरह। अल्लाह करे कि सैयद अली खामनाई के साथ मैं मुआवजा नहीं कर रहा, यानी वो वाली पोजीशन ये इंजॉय करेंगे और अगले मानेंगे, और इनको 3 फर्शी सलाम भी करना पड़ेगा। और हमारे जो दीनी दोस्त हैं, जो हमारे रहबर हैं दीनी, वो कहेंगे कि बिल्कुल ऐन इस्लाम है कि इनको 3 दफा रुकू में जाकर इस तरह जो है ना वो करना पड़ेगा। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।